Om Shanti Shanti Shanti. Namaste. Hearty welcome to you all in this webinar series being organized by Ministry of Ayush Government of India in association with 5 leading yoga institutions and coordinated by Morarji Desai National Institute of Yoga. Now, the whole world is gearing up to observe 7th International Day of Yoga 2021 on 21st June. We are all excited to raise awareness about yoga and making it accessible to larger community. A mobile application, Namaste Yoga, was launched on 11th June 2021 by the Ministry of Ayush, Government of India. Today we are very fortunate to have Aram Shri Muni Pranamya Sagarji Maharaj. Sri Muniji is a visionary, a youth icon who envisaged global peace and has lakhs of followers across the globe. He is amongst the most knowledgeable and respectable spiritual masters of India. We also have today Sri Chinmaya Kiawatji, founder and chairman Om Aram Dhyana Yoga Foundation with us, an architecture by profession with an experience of more than 25 years in the teaching of yoga. He has deep knowledge in yogasana, personality development and motivational speeches. It's my privilege to welcome Pujya Pranamya Sagarji Maharaj and also Sri Chinmayji on this occasion. And also I take this opportunity to welcome you all for this webinar. I do hope the knowledge and skill being transferred from the Chinmayji will help us to practice yoga regularly by improving our knowledge and also skill. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. ओम शांति शांति शांति. ओम अरहम नमा. अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में 12 बार नमोस्तु अर्पित करती हूँ. I welcome you all in this Be With Yoga, Be At Home webinar series organized by the Ministry of Ayush, Government of India. The ministry is collaborating with many leading yoga institutions of the country and organizing the Be With Yoga, Be At Home webinar session as one of the various activities to observe International Day of Yoga 2021. Morarji Desai National Institute of Yoga is coordinating the webinar series in collaboration with the 5 leading yoga institutions, the Art of Living, the Yoga Institute, Kevalitham Institute, Krishnamacharya Yoga Mandiram, and Arham Dhyan Yoga. In this series, every day, one leading yoga institution comes up with a thematic program, both with a talk by an eminent expert and a practice session, and is being promoted every day at 5 to 6 p.m. Today, Arham Dhyan Yoga would be conducting a webinar on awareness and motivation. And we are very fortunate to listen to Arham Shri Muni 108 Pranamya Sagarji Maharaj. He is among the most knowledgeable saints of the country and a renowned scholar in Prakrit, Sanskrit, Hindi and English. He is a visionary and a youth icon who envisioned global peace rooted in the Indian culture. In Arham Dhyan Yoga, he has simplified thousands of year-old processes and made them accessible to common people. With his inspiration, Arham Dhyan Yoga has taken up several scientific researches to bridge the generational gap and make the ancient practices contextual to today's youth. Shri Chinmaya Kiawatji would be taking a practical session on awareness and motivation. He is the founder chairman of Om Arham Social Welfare Foundation. Chinmayji is known for his broad vision towards life, sense of humor, and profoundness of knowledge blended with simplicity and amicability. An architect by profession, he has been into yogic practices for more than 25 years.
ही इज़ द चीफ ट्रेनर एट अरहम ध्यान योग। अब मैं अरहम श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करती हूँ कि वह हमें अपनी वाणी से कृतार्थ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग में आप लोगों ने अभी तक जो अरहम के स्टेप किए हैं उनमें आपने एक्टिवेशन, रिलैक्सेशन और हीलिंग, ये 3 स्टेप कर लिए। इसके बाद में ARHAM, अभी A और M 2 स्टेप बचे हैं। A फॉर अवेयरनेस होता है और M फॉर मोटिवेशन होता है। अवेयरनेस और मोटिवेशन ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को करने के लिए आपको पिछले वाले स्टेप्स भी बहुत अच्छे ढंग से करना आना चाहिए। यानी जब आपने एक्टिवेशन अच्छे से किया होगा, रिलैक्सेशन किया होगा, हीलिंग की प्रोसेस कर ली है, तो अब आप अच्छे ढंग से आप अपने अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं। और अवेयरनेस बहुत कुछ आपके अंदर एक अटेंशन से आती है। जब आप अवेयर होते हैं तभी आप अटेंटिव होते हैं, और अवेयरनेस और अटेंशन के साथ में अगर आप कुछ टाइम तक रहने लग जाएं तो आप समझेंगे कि आपके अंदर भीतर से जबरदस्त मोटिवेशन हो चुका है। इस अवेयरनेस के माध्यम से आपके अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस में अंतर आता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में अंतर आता है, और धीरे धीरे ये जो हमारा ब्रेन का सिस्टम होता है जो न्यूरॉन्स पर डिपेंड करता है, इस पूरी न्यूरोलॉजी के स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। जब आपने अपने अंदर ध्यान किया तो ध्यान आप कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ARHAM ये पूरा ध्यान है, ध्यान का प्रोसेस है ना। ध्यान करते करते आप अवेयरनेस तक आ गए। इस अवेयरनेस का मतलब है कि अब आप भीतर से अपने आप को जानने लगे, समझने लगे, भीतर से अपने आप को महसूस करने लगे कि हम कहाँ पर गलती करते हैं, कहाँ पर हमें अपनी गलती को सुधारना है। ये किससे आएगा? ये अवेयरनेस से आएगा। आपके भीतर जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको लगेगा कि बहुत सी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में कुछ हमारी स्पीड के कारण से बिगड़ जाती हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, ज्यादा तेजी से बात कर लेते हैं, जब आप एकदम से झटके में किसी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, फिर आप उसके रिजल्ट देखते हैं बाद में, अरे तो बहुत गलत हो गया, तो चीजें बिगड़ती हैं आपकी अवेयरनेस की कमी के कारण से। जब भी कभी आपको पश्चाताप होगा, जब भी कभी आपके लिए किसी चीज की रॉन्ग फीलिंग आएगी कि मैंने गलत किया है, तो आप देखेंगे वहां पर आपको पता था कि हम ऐसा कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। ये अवेयरनेस ही वो चीज है जो आपकी जिंदगी में हर एक स्टेप पर आपको काम आएगी। आपको अपने बॉस के सामने कैसे बोलना है, आपको अपनी पत्नी के सामने कैसे बोलना है, आपको अपने बच्चों के साथ कैसे बोलना है, आपको अपने छोटों के साथ कैसे बोलना है, आपको बड़ों के साथ कैसे बोलना है। कोई अगर आपको सडनली किसी भी तरीके से आपके लिए किसी प्रेशराइज करता है, आपके लिए कोई गलत कमेंट्स करता है, तो भी आपको क्या रिएक्ट करना, कैसे करना, ये जो एक चीज है, ये चीज ही आपको भीतर से एक गंभीर बनाती है। आपने कभी शब्द सुना है गंभीर? है? गंभीर का मतलब वो नहीं है जो कहते हैं लोग सीरियस हो गया, मैंने मुंह बहुत भारी सा बना लिया, उसका नाम गंभीर नहीं। गंभीर का मतलब सीरियसटी इसी अवेयरनेस के साथ जुड़ी हुई है। माने कुछ भी बाहर से हो रहा है लेकिन फिर भी आप भीतर से, गंभीर का मतलब है धैर्यवान। गंभीर शब्द किससे जुड़ता है? धैर्य के साथ। तो जितना आपके अंदर गंभीरता होगी उतना आपके अंदर धैर्य होगा, और वो धैर्य होगा तो वो सब कुछ, ये रिजल्ट होगा अवेयरनेस का। आपने जो स्टेप किए हैं इन सब का रिजल्ट अवेयरनेस है, और इस अवेयरनेस का भी रिजल्ट है आपके भीतर मोटिवेशन होना। मतलब कि आप अपने आप को भीतर ही भीतर मोटिवेट कर रहे हैं। आपके अंदर एक पावर आ गई है कि आप अपने आप को सुधार पा रहे हैं। आजकल दुनिया में देखोगे आप, जो लोग नहीं सुधरते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो कभी अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि मैं बिल्कुल सही हूं। उनसे अगर कोई सुधार की बात कहता भी है तो उन्हें ये लगता है कि नहीं, मैं कंप्लीटली राइट हूं। तो इसी थिंकिंग के कारण से वो अपने अंदर कभी कोई मोटिवेशन ला नहीं सकते। तो जो व्यक्ति इस तरीके से सोचता है
कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की सीख की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, चेंज तो केवल दुनिया में होना चाहिए, वो व्यक्ति कभी मेडिटेशन नहीं कर सकता, कभी अवेयर नहीं हो सकता, कभी उसके लिए मोटिवेशन नहीं हो सकता। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप के बारे में आज जानकारी दे रहा हूं कि अवेयरनेस आपको बढ़ानी है। और वो अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, तो अगर आप इसी प्रोसेस के थ्रू, आप एक्टिवेशन करने के बाद, रिलैक्सेशन करने के बाद, हीलिंग करने के बाद, जब आप बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बैठे हुए हैं, उस स्थिति में आपको भीतर ही भीतर अपनी अंदर ये देखना है कि जैसे ही हम इस मेडिटेशन की स्टेट से बाहर निकलेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड कितनी होगी। मान लो अगर आपसे कहा जाए चलो भाई मेडिटेशन पूरा हो गया, आप कितनी जल्दी उठेंगे, कितनी तेज दौड़ना शुरू करेंगे, कितनी तेजी से लोगों से बात करना शुरू करेंगे, किस चीज की आप हड़बड़ी में पड़ते हैं। ये सब जो हड़बड़ियां होती हैं, वही सब गड़बड़ियों का कारण होती हैं। तो ये हड़बड़ी गड़बड़ी ये सब आपके लिए तब रुक पाएगी जब आप भीतर से ये फील करेंगे, हमें अपने अंदर जो उद्रेक हैं, जो उत्सुकताएं हैं, जो अनावश्यक हमारे अंदर इसे हम मानसिक आवेग कहते हैं, ये आवेगों को हम जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही हमारे अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी। तो अवेयरनेस के माध्यम से आवेग भी कंट्रोल होते हैं, और अवेयरनेस के माध्यम से ही हम हमेशा ध्यान की पोजीशन में रह सकते हैं, मतलब ऑलवेज अटेंटिव। आपको कहने की जरूरत ना पड़े, जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलना पड़ता है अटेंशन प्लीज, समझ आ रहा, माने आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान लगवाया जाता है, आपको ध्यान दिया जाता है। तो ध्यान का मतलब एक तो वो हो गया जब आप बैठ करके लगा रहे हो, वो ध्यान एक अलग चीज हो गई। लेकिन आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप पैसा भी गिन रहे हो, आप ग्राहक को उसी समय पर देख भी रहे हो, उस ग्राहक से बातचीत भी कर रहे हो, इधर जो कौन सा आपका नौकर काम कर रहा है उससे भी आप देख रहे हो। ये सब कुछ जो होता है, ये सब अवेयरनेस के थ्रू ही होता है। और ये पावर ऑफ अवेयरनेस आपके अंदर जितनी बढ़ेगी, उतना ही आप हमेशा ध्यान में रहोगे। तो ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल हम बैठ करके ही ध्यान करें। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति दुनिया में ध्यान के साथ ही चले, ध्यान के साथ ही उठे, ध्यान के साथ ही बैठे, ध्यान के साथ ही बात करे, इवन ध्यान के साथ ही भोजन करे, ध्यान के साथ पानी पिए, ध्यान के साथ ही किसी से मिले जुले। सब कुछ ध्यान के साथ होना चाहिए। और दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू बिकेम कंप्लीटली अवेयर। अवेयरनेस का मतलब हो गया कि अगर आपके अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेंटल लेवल पर हो, तो आप उसको वॉच कर रहे हैं, और वॉच करते हुए आप उसकी इंटेंसिटी भी देख रहे हैं, किस इंटेंसिटी के साथ में वह हमारे भीतर वो एक्टिविटी चल रही है, क्या सोच रहे हैं, कितनी देर सोचना चाहिए। अब देखो ये कितनी बड़ी चीज की कमी होती है कि ये अवेयरनेस की कमी के कारण से ही ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने कुछ लोगों को देखा होगा, काम कुछ कर रहे होते हैं और उनके चेहरे कुछ ऐसे हो जाते हैं, आंखें कुछ ऐसी हो जाती हैं, कुछ ही देर की चीज के बारे में कुछ दूर तक सोचते चले जाते हैं। दूसरे लोग उनको वाच कर लेते, देखो ये बैठे यहां हैं, सोच कहीं और रहे हैं। समझ आ रहा है? ये किसकी कमी के कारण से? ये अवेयरनेस की कमी के कारण से। आपने एक पहले एक सीरियल चलता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, समझ आ रहा है ना? हाँ, मैंने भी देखा है। तो वो करता कुछ रहता था और करते करते कुछ का कुछ, कहीं का कहीं कुछ खो जाता था। समझ आ रहा है ना? तो आपको ऐसा मुंगेरी लाल नहीं बनना, आपको हमेशा अटेंटिव रहना है। आपसे कोई कहे ना कि ये काम आप भूल गए, आपको पता होना चाहिए हम कब कौन सा काम करने जा रहे हैं, और किस काम के लिए हम कब तक उस काम को करके लाके दे देंगे वापस। तो ये सब चीजें जो आएंगी आपके अंदर, ये आएंगी अवेयरनेस के साथ में। अवेयरनेस, अटेंशन एक ही बात है। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उस प्रैक्टिस में भी हम यही चीज को प्रैक्टिस करेंगे कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वो कितनी इंटेंसिटी के साथ होती है। हम मान लो भोजन कर रहे हैं, कभी आप सोच सकते हो कि आप भोजन करते हुए भी अवेयरनेस रख सकते हो? रखी जा सकती है। शुरुआत यहीं से करना चाहिए। आदमी सबसे ज्यादा समय लगाता है, मुझे लगता है, दिन भर भोजन करता है, पानी पीता है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप इसमें भी अवेयरनेस रखें, कैसे संभव है? आपने जब भी कोई चीज लेने की कोशिश की, आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं।
आपने चिम्मच से वो चीज़ ली, वो चिम्मच आपके मुंह तक आई, आपने मुंह में रखा, समझ आ रहा है? उसके बाद मुंह में चर्बन शुरू हो गया। जब चर्बन चल रहा है तो आप अवेयरनेस के साथ में देखें, उसका टेस्ट फील करें, उसकी स्मेल फील करें, उसके चर्बन के समय पर कौन कौन सी मसल्स पर क्या क्या प्रेशर आ रहा है वो भी आप देखें। ये सब जितना आप बारीकी से देखेंगे ये सब आपका अवेयरनेस कहलाएगा। इस अवेयरनेस के माध्यम से केवल इतना ही नहीं होगा कि आप अच्छे ढंग से खाना सीखेंगे, पीना सीखेंगे, आप हर काम अच्छे ढंग से करना सीखेंगे। तो मैं कहता हूं कि आपको अगर अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है तो आपको भोजन के साथ ही अवेयरनेस शुरू करना चाहिए। इससे क्या होगा? सबसे अच्छा फायदा तो ये होगा कि आपको हर चीज का पूरा टेस्ट आएगा। समझ आ रहा है? आपका अटेंशन अगर भोजन पर रहेगा तो आप पिक्चर देखते हुए, टीवी देखते हुए कभी भी भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए अवेयरनेस भोजन पे नहीं रहेगी। समझ आ रहा है? तो जब तक भोजन पर अवेयरनेस नहीं होगी, आपके पेट में गया हुआ भोजन स्वस्थता आपको प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि आप ध्यान पूर्वक भोजन नहीं कर रहे तो वो ध्यान में ही आपके लिए सहायक नहीं बनेगा। तो जो ध्यान पूर्वक भोजन करेंगे उन्हीं का भोजन ध्यान में सहायक बनेगा। समझ आ रहा है? जो पिक्चर देखते हुए, मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं, जल्दी जल्दी भोजन को एक ऐसा प्रोसेस समझते हैं कि भाई काम चलाओ हुए, जल्दी जल्दी खाया पिया और चले अपने काम से, तो ऐसे लोग कभी भी ध्यान के योग्य बन ही नहीं सकते। बुरा नहीं मानना, समझने की कोशिश करना। तो आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये अवेयरनेस का प्रोसेस, और इस प्रोसेस पर आप ध्यान दें। इसकी प्रैक्टिस भी अभी हम आपको करा रहे हैं। इस प्रैक्टिस के माध्यम से आप समझेंगे कि अवेयरनेस कैसे लाई जा सकती है। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम गुरुवर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में नमन करते हैं। आज हमारा दिन है अवेयरनेस और मोटिवेशन का। अरहम, अरहम के 5 अक्षर ARHAM। एक्टिवेशन हमने सीखा, रिलैक्सेशन हमने सीखा, हीलिंग हमने सीखी। आज हम सीखने जा रहे हैं अवेयरनेस और मोटिवेशन। अवेयरनेस हमारे लाइफ का महत्वपूर्ण अंग है। अवेयरनेस, अवेयरनेस इक्वल टू अटेंशन, इक्वल टू जागृति। जब हम रेगुलरली एक्टिव होते हैं, रिलैक्स होते हैं, हील होते हैं और लगातार ध्यान करते हैं, तो लगातार ध्यान करने से हमारे अंदर एक जागृति का विकास होता है। उस जागृति के माध्यम से, या इस जागृति को ही हम कह सकते हैं अवेयरनेस, उस अवेयरनेस के विकास से हम लगातार एक समभाव में रह सकते हैं। एक हम अपना लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं, हमें इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है। हम अवेयर हो जाते हैं इन सब चीजों के प्रति, या यूं कहूं कि सारे नकारात्मक भावों से दूर होने की प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है। जब हम नकारात्मक भाव से दूर होते हैं तभी हमारे अंदर पात्रता जागृत होती है सकारात्मक भाव को ग्रहण करने की। जैसे जैसे हम नेगेटिव एनर्जी को लॉस करते हैं, वैसे वैसे हम अवेयरनेस के माध्यम से पॉजिटिव एनर्जी ग्रहण करना शुरू करते हैं। और जब हम लगातार इस समभाव में रहते हैं, लगातार अवेयरनेस में रहते हैं, तो थोड़े समय में हम ये अनुभव करने लग जाते हैं कि हम ध्यान की ओर अपने आप आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान में मन लग रहा है, हम त्रुटियों से बाहर आते जा रहे हैं, या यूं कहूं कि त्रुटियों से ऊपर वाला जीवन, जो एक हमारा स्तर है त्रुटियां करने वाला, त्रुटियां सुधारने वाला और त्रुटियों से परे रहने वाला, हम परे रहने वाला जीवन शुरू कर देते हैं। तो इस जीवन को जीने के लिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे अवेयरनेस और मोटिवेशन की। और जब हम लगातार अवेयरनेस के प्रोसेस में रहते हैं तो मोटिवेशन हमारे अंदर अपने आप आने लगता है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं। चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं अरहम ध्यान योग के माध्यम से अवेयरनेस और मोटिवेशन की। अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अवेयरनेस और मोटिवेशन के लिए। बहुत छोटी एक्सरसाइज पर हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी को लॉस करने के लिए बहुत सुंदर एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। दोनों हाथों को सामने रखना है और जैसे हमारे हाथ गीले होते हैं और हाथ झटकते हैं हम, वैसे हाथों को झटकना है
और साथ में श्वास को छोड़ते हुए जंप करना है। इस प्रकार से जंप कर पैरों में फासला 6 से 8 इंच का, इससे अधिक ना हो। दोनों हाथों को झटकना, श्वास को तेज गति से छोड़ना और साथ में जंप करना। एक बार देखते हैं, फिर एक साथ करते हैं। इस प्रकार से हाथों को झटकना, श्वास को तीव्र गति से छोड़ना और साथ में जंप करना। चलिए शुरू करते हैं। विश्राम। आंखें बंद कर लें। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट हो, दिव्य सी मुस्कान हमारे चेहरे पर हो। साधारण और विश्राम देने वाली श्वास लें और छोड़ें। अब एक लंबी गहरी श्वास लें, पूरी तरह फेफड़ों को भर लें। रोकें, श्वास को रोके होल्ड करें। ओम अर्हम नमः। श्वास खाली करें। पूर्ण विश्राम। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट के भाव। तो हम करते हैं पादहस्तासन। पैरों में फासला 6 से 8 इंच का, दोनों पैर जमीन आपस में समानांतर हो, बाहर की ओर फैले हुए ना हो। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को खाली करते हुए सामने की ओर झुकें। जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचें और होल्ड करें, अपने आप को रोकें। इसी पोजीशन में होल्ड करें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। यहीं से दोनों हाथ ऊपर और विश्राम। आंखें बंद करें। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट के भाव। एक साधारण श्वास लें और छोड़ें। अब एक लंबी गहरी श्वास लें, रोकें, श्वास को रोक के रखें और मन ही मन, उच्चारण नहीं करना, ओम अर्हम नमः। श्वास छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास लें, रोकें, रोकते हुए मन ही मन, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट रखते हुए ओम अर्हम नमः। श्वास खाली करें। धीरे से आंख खोलेंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। अर्ध चक्रासन करते हैं। अपने दोनों पैर आपस में समानांतर रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लें और खाली करते हुए पीछे की ओर झुकें। खाली करते हुए पीछे की ओर झुकना।
जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे झुकें। जितना तनाव दे सकते हैं उससे 20% कम तनाव दें। चाहें तो पीठ पर भी हाथ रख के सपोर्ट कर सकते हैं और पीछे की ओर जा सकते हैं। अगर चाहें तो हाथ ऊपर रखकर जाएं, चाहें तो हाथ पीछे रख के ऊपर जाएं, पीछे की ओर जाएं। एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। छोड़ते हुए सामने की ओर आएं, विश्राम करें। एक लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास, रोकें। ओम अरहम नमः। एक और लंबी गहरी श्वास लें, रोकें। ओम अरहम नमः। छोड़ें। धीरे से आंख खोलें। अब हम करते हैं उत्कटासन। दोनों हाथ सामने इस प्रकार से और अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठ जाएं इस प्रकार से। दोनों हाथ सामने, घुटनों और जंघाओं के बल पे अपनी आराम वाली कुर्सी पर बैठ जाएं। चेहरे पर सुंदर से मुस्कुराहट के भाव बने रहें। लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। विश्राम। आंखें बंद कर लें। पूरा ध्यान घुटनों और जंघाओं में हो रहे दर्द पर। आंखें बंद रखें, चेहरे पर सुंदर से मुस्कुराहट के भाव हों। एक लंबी गहरी श्वास लें, खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास लें, रोकें। ओम अरहम नमः। एक और लंबी गहरी श्वास, रोकें। ओम अरहम नमः। श्वास खाली करें और धीरे से आंखें बंद रखते हुए, कोशिश करें आंखें बंद रखते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे से अपने स्थान पर आंखें बंद रखते हुए वज्रासन में ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान शरीर में बढ़ रही ऊर्जा पर। लंबी गहरी श्वास लें वज्रासन में, छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। अब हम करते हैं मंडूकासन। अपने हाथों की मुट्ठियां बना लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर कर लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद कर लें। पेट को थोड़ा अंदर संकुचित करें। दोनों मुट्ठियां नाभि स्थल के आसपास। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएं। श्वास खाली करते हुए सामने झुकें, गर्दन सामने,
एक लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। एक और लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। श्वास खाली करने के बाद विश्राम अवस्था में आए। अब हम करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन से ही अपनी पोजीशन को इस प्रकार ऊपर कर लें। इस प्रकार ऊपर हो जाएं। आपके घुटने और पैर 90 डिग्रीज में हो। दोनों हाथों से पीछे मुड़कर अपनी एड़ियों को पकड़ना है इस प्रकार से और पीछे झुकना है। जब उष्ट्रासन की पोजीशन में हम हो, हमारा पूरा ध्यान रहे हमारे विशुद्धि केंद्र पर, कंठ स्थान पर हमारा ध्यान रहे और लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ना। चलिए एक साथ उष्ट्रासन करते हैं। हाथों को घुमाकर पीछे जाकर अपनी एड़ियों को पकड़ लें, पीछे की ओर झुके, लंबी गहरी श्वास, श्वास खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। पहले एक हाथ और दूसरे हाथ को फिर घुमाकर आगे लाएं और धीरे से पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास, एक लंबी गहरी श्वास, पूरी तरह फेफड़ों को भरने वाली श्वास, चेहरे पर सुंदर से मुस्कुराहट के भाव, रोकें। ओम अरहं नमः। श्वास खाली करें। पुनः एक लंबी गहरी श्वास, रोकें। ओम अरहं नमः। श्वास छोड़ें। अब हम करते हैं पूर्ण विश्राम के लिए, मन को शांत करने के लिए बालासन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लें और आपस में जोड़ लें। श्वास को खाली करते हुए सामने की ओर झुक जाएं, नतमस्तक हो जाएं, दोनों हाथ जमीन पर रख दें इस प्रकार से और आगे झुक जाएं। अपनी नासिका को पृथ्वी पर स्पर्श करने का प्रयास करें। बालासन में विश्राम करें। साधारण श्वास लें और छोड़ें। पूर्ण विश्राम। धीरे से हाथों को ऊपर लाएंगे और फिर से साइड में, आंखें बंद। मन ही मन अपने शरीर में बढ़ती हुई ऊर्जा को देखें। शरीर में जहां जहां भी ऊर्जा का विकास हो रहा है, अपना पूरा ध्यान वहां पर ले जाएं। धीरे से वज्रासन छोड़कर आंखें बंद रखते हुए सुखासन में आ जाएं। सुखासन में आ जाएं। आंखें बंद रखें। पूरा ध्यान शरीर में बढ़ रही ऊर्जा पर।
हो सके तो पूर्ण पद्मासन में आ जाएं, नहीं तो अर्ध पद्मासन, नहीं तो सुखासन, जैसा आपको उचित लगे उस आसन में आ जाएं। पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। अब हम पंच नमस्कार मुद्रा करने जा रहे हैं। अपने मन को अवेयरनेस की ओर आगे ले जाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अरहममय होने के लिए, अपने जीवन को ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए, आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए पुनः एक बार मन ही मन गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज को नमन करते हैं और आगे बढ़ते हैं पंच नमस्कार मुद्रा के लिए। पहले प्रार्थना मुद्रा, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी हो, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए हों, दोनों हाथ जमीन के समानांतर हों, नीचे की ओर झुके हुए ना हो, जमीन के समानांतर। पहली मुद्रा पावर के लिए, पावर मुद्रा। दोनों हाथों को कान के पास से ऊपर की ओर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें हाथों को, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट बनी रहे। एक लंबी गहरी श्वास लें, पूरी तरह फेफड़ों को भर लें, रोकें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं। मुद्रा फॉर एनर्जी, सेकंड मुद्रा। दोनों हाथों को सामने इस प्रकार लाएं, हाथ हल्के से घुमावदार हों, कोहनियां ना मुड़े, पीठ की हड्डी पूरी तरह सीधी रहे, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट बनी रहे। एक लंबी गहरी श्वास लें, रोकें, मन ही मन, उच्चारण नहीं करना। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। लंबी गहरी श्वास लें, एक, खाली करें, पीस की थर्ड मुद्रा। दोनों हाथ इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में, अपनी कलाइयों को राइट एंगल मोड़ें। मुद्रा फॉर एक्टिविटी, कलाई को मोड़े 90 डिग्रीज में, कोहनियां शरीर के पास, सीना बाहर, गर्दन ऊपर, आंखें बंद, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, रोकेंगे। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में आएंगे फिर से। मुद्रा फॉर क्रिएटिविटी, चौथी मुद्रा। दोनों हाथों को सामने लाएंगे इस प्रकार से, दीवार को धक्का देने के समान, कंधे बाहर की ओर निकल आए, कलाइयां पूरी तरह मुड़ी हुई हो 90 डिग्रीज में, हाथों में फासला 3 से 4 इंच का, इससे अधिक ना हो, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। लंबी गहरी श्वास लें, रोकें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा में आए। मुद्रा फॉर इवोल्यूशन, पांचवी मुद्रा।
दोनों हाथ सामने जोड़कर मस्तक हो जाएं, सामने की ओर झुक जाएं। एक लंबी गहरी श्वास लें, रोकें, मन ही मन ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। प्रार्थना मुद्रा। अपने अंदर बढ़ रही ऊर्जा को देखें। शरीर में जिन जिन भागों में ऊर्जा का विकास हो रहा है उस और अपना ध्यान ले जाएं। पूरा ध्यान अंदर बढ़ रही ऊर्जा पर। हर अंदर आती हुई श्वास हमें ऊर्जा दे रही है और हर बाहर जाती हुई श्वास हमें विश्राम दे रही है। धीरे से प्रार्थना मुद्रा छोड़कर ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। अब हम करते हैं वायु मुद्रा प्राणायाम। योग से हम बढ़ रहे हैं प्राणायाम की ओर। अपने प्राणों को विकास करने के लिए, अवेयरनेस और मोटिवेशन को अपने अंदर बढ़ाने के लिए पहली मुद्रा है वायु मुद्रा। अपनी पहली उंगली अंगूठे के बॉटम पर, पहली उंगली अंगूठे के बॉटम पर, पहली उंगली अंगूठे के बॉटम पर और अंगूठा पहली उंगली पर लॉक किया हुआ। पहली उंगली अंगूठे के बॉटम पर, अंगूठा उस उंगली पर लॉक किया हुआ, बाकी तीन उंगलियां सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी। चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। लंबी गहरी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी श्वास, छोड़ें। दूसरी मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। जो पहली उंगली अंगूठे के बॉटम पर है उसे रहने दें, अगली दो उंगलियों के टॉप से अंगूठे के टॉप को जोड़ लें। पहली उंगली का टॉप अंगूठे के बॉटम पर, अगली दो उंगलियों का टॉप अंगूठे के टॉप से जुड़ा हुआ, छोटी उंगली बाहर की ओर। अपान वायु मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें 2 बार। पूरा ध्यान अंदर जा रही श्वास पर और बाहर आती हुई श्वास पर। अपने मन को पकड़ कर रखें श्वास के ऊपर। तीसरी मुद्रा है आदि मुद्रा। अंगूठा मुट्ठी के अंदर मुट्ठियां बंद कर लें, मुट्ठियों को घुटनों पर रख लें। मुट्ठियों को घुटनों पर रख लें, अंगूठा मुट्ठी के अंदर। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, चेहरे पर सुंदर से मुस्कुराहट, लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें 2 बार और पूरा ध्यान अंदर जाती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर। यहीं से इसी आदि मुद्रा से अपने दोनों अंगूठे को ऊपर की ओर कर लें, दोनों अंगूठों को ऊपर की ओर कर लें। मेरुदंड मुद्रा। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें 2 बार। पूरा ध्यान श्वास पर। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। दोनों हथेलियों को खोलकर इस प्रकार घुटनों पर रख दें, हथेलियों का मुख आसमान की ओर रहे। महामुद्रा। पूरा ध्यान श्वास पर, शरीर में बढ़ रही ऊर्जा पर।
अवेयरनेस, मोटिवेशन। लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। मन बार बार बाहर जाता है और उसे पकड़कर श्वास पर लाएं। अपने अंदर बढ़ती हुई ऊर्जा को अनुभव करें। उस ऊर्जा को देखकर प्रसन्न हो जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। अब हम गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज की वाणी में ध्यान करेंगे। ओम अरहं नमः। आंखें बंद रखते हुए ध्यान की स्थिति में बैठे रहेंगे या खड़े हुए हैं तो खड़े रहेंगे। श्वास की प्रक्रिया को निरंतर देखें। श्वास न लंबा रखें न छोटा रखें। श्वास के लिए कोई प्रयत्न न करें। सहज श्वास चलने दें। श्वास जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही आप भीतर से अवेयर होंगे। और कोशिश करें भीतर से कोई प्रयत्न न हो श्वास लेने के लिए। अटेंशन इसी बात पर रखें कि हम कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग नथिंग। शरीर बिल्कुल स्थिर रहे। शरीर में कोई हलन चलन नहीं। धीरे धीरे महसूस करें हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। वी आर थिंकिंग नथिंग।
इस समय आप महसूस करें आप बाहर जब होते हैं तो कितनी तेज होते हैं, कितनी गति में होते हैं, कितने आवेग में होते हैं। अपनी ही पिछली एक्टिविटी को एक इमेज के रूप में अपने सामने लाएं। इस समय जो आप हैं, जो आपके अंदर शांति और आवेग से रहित भाव है, उसको कंपेयर करें। अपने अंदर अपनी अवेयरनेस और बढ़ाने के लिए अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं, धीरे धीरे, बहुत धीमे। जितना धीमे आप कर सकते हैं उतना धीमे, बहुत धीमे धीमे ऊपर की ओर उठाएं। जितना आप ले जा सकते हैं ऊपर की ओर उतना धीमे धीमे ले जाएं। धीमे धीमे अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। जितना ले जा सकते हैं आप ऊपर की ओर उतना धीमे धीमे, जैसे हर सेकंड कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है। और ऊपर बहुत आराम के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ कि हमारे हाथ धीमे धीमे ऊपर जा रहे हैं। अब आप वापस अपने हाथों को उसी तरह से धीमे धीमे नीचे लाएं। धीमे धीमे अपने हाथों को पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी पुरानी स्थिति पर लाने की कोशिश करें। अपनी पूर्व स्थिति में आकर
महसूस करें कि हमने किस तरह से हर एक सेकंड अपने आप को अवेयर रखा है। सपोज करें आपके पीठ पर कुछ है, कोई आपको कीड़ा काट रहा है या कुछ खुजली सी हो रही है, लेकिन आप अपना हाथ उस पीठ तक झटके से नहीं ले जाएंगे, बहुत आराम से पीठ की तरफ ले जाएंगे। कोई सा भी एक हाथ धीमे धीमे उठाएं। जब आप खुजली के लिए, खुजलाने के लिए तैयार होते हैं तो कैसे आप धीमे धीमे अपने हाथ को पीठ तक ले जाएंगे, सहसा कुछ नहीं करेंगे, बहुत सोच समझकर पूरी अटेंशन के साथ में कि मेरा हाथ पीछे जा रहा है, इतना मूव कर चुका है और अब मुझे जिस स्थान पर हाथ को टच करना था वहां पहुंच रहा है, पहुंच गया। अब वहां हम खुजला रहे हैं, उसका पूरा सेंसेशन, उसकी पूरी नॉलेज, पूरी अवेयरनेस के साथ हमको हो रही है। बड़े आराम से उस खुजलाहट के भी स्पर्श को महसूस करें। कभी आपने महसूस किया कि मेरी अंगूठा, मेरी उंगली कितने स्मूथ हैं या कितने भारी हैं, उसको भी आप महसूस करें। आपकी उंगली की मोटाई कितनी है, पूरी अवेयरनेस के साथ जहाँ पर आप खुजला रहे हैं उससे होने वाला सेंसेशन महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथ को सामान्य स्थिति में लाएं। अब महसूस करें कि इतनी अवेयरनेस के साथ हमने पहले अपने आप को कभी टच नहीं किया, कभी फील नहीं किया। आपको और ज़्यादा भीतर से इस अवेयरनेस की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी आँख की पलकें बहुत धीमे, बिना गर्दन इधर उधर घुमाए बहुत धीमे धीमे, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आराम से धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलने की, बाहर की चीजों को देखने की उतनी ही कोशिश जितना आपका आई साइट का विजन आ रहा है। आँखों को आप और ऊपर तक खोल करके ऊपर तक देखने की कोशिश कर सकते हैं।
और धीरे धीरे फिर से पलकें बंद करने की कोशिश करें। महसूस करें आपसे कोई बात करना चाह रहा है, लेकिन आप बोलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आप भीतर से इतना सावधान हो चुके हैं कि आप बोलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर आपने धीमे धीमे बोलना शुरू किया। किसी से भी बात करने से पहले अवेयरनेस रखना है। हम उसको किसी भी पूर्व धारणा के साथ न देखें न बोलें, किंतु एक नए व्यक्ति से बात करने की तरह प्रसन्नता पूर्वक अपने चेहरे पर पॉजिटिव इमोशंस लाते हुए उससे बात करेंगे। महसूस करें मैं किसी से बड़े प्रेम पूर्वक प्रसन्नता के साथ शांति से बोल रहा हूँ। इससे आप अपने एंगर को कंट्रोल करेंगे। जब भी आप एंग्री होंगे, आपके लिए अवेयरनेस उसी समय पर काम आएगी। ठीक इसी तरह आप अब मानसिक स्तर पर विचारों की तरफ चलें। आपने शारीरिक स्तर पर अपनी अवेयरनेस की प्रैक्टिस की, वाचनिक स्तर पर अपने अंदर अवेयरनेस की प्रैक्टिस की। अब अपने विचारों के साथ कोई भी फिजूल के विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, उन्हें हम रोक सकते हैं। जिस तरह अभी हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ के विचार नहीं, उसी तरह हम आगे भी कुछ व्यर्थ का नहीं सोचेंगे। व्यर्थ की चिंता नहीं करेंगे। हम पूर्णतया सावधान हैं, जागृत हैं, अपने मन वचन काय की क्रियाओं में सजग हैं, सजग हैं, सजग हैं।
और यही अवेयरनेस की प्रैक्टिस आपके अंदर जो मोटिवेशन ला रही है वह मोटिवेशन सहज है, सहज है, सहज है। अवेयरनेस सजगता है, मोटिवेशन सहजता है। आप अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। इसी सजगता और सहजता का भाव लिए हुए इस मंत्र को पढ़ें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम नमः। पूज्य अरहम श्री मुनि 108 प्रणव में सागर जी महाराज के चरणों में त्रैबा नमोस्तु अर्पित करती हूँ। मैं सौम्या जैन ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। माननीय श्री P.N. रंजीत कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार। माननीय डॉक्टर ईश्वर वी बासुरेड्डी जी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। श्री चिन्मय कियावत जी, ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और देश विदेश से जुड़े हमारे सभी सोशल मीडिया के दोस्त जिन्होंने आज हमें विविध योगा बी एट होम वेबिनार सीरीज़ में अवेयरनेस एंड मोटिवेशन के लिए ज्वाइन किया। मैं माननीय श्री P.N. रंजीत कुमार जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ। आपकी सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के उपलक्ष्य में प्रमुख योग संस्थानों के साथ विविध योगा बी एट होम सीरीज़ का आयोजन किया जा रहा है। मैं माननीय डॉक्टर ईश्वर वी बासुरेड्डी जी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा, निष्ठा और योग के प्रति समर्पित प्रयासों से इस महामारी के समय में भी नई तकनीकों के माध्यम से लोगों को योग के साथ जोड़ा जा रहा है। विविध योगा बी एट होम सीरीज़ का सफल आयोजन किया जा रहा है। मैं श्री चिन्मय कियावत जी, ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें अवेयरनेस और मोटिवेशन की क्रिया से अवगत कराया और योग का अभ्यास कराया। मैं धन्यवाद करती हूँ द आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु, द योग इंस्टीट्यूट मुंबई, केवलिथाम इंस्टीट्यूट पुणे, कृष्णमाचार्य योग मंदिरम चेन्नई, ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन MP एंड मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा का विविध योगा बी एट होम सीरीज़ के आयोजन में शामिल होने के लिए। मैं सभी मीडिया पर्सोनल का, देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस श्रृंखला में शामिल होने के लिए धन्यवाद करती हूँ और कामना करती हूँ कि योग के माध्यम से आप स्वस्थ तन, मन और चेतन की प्राप्ति करें। ओम अरहम नमः। Namaste to all. I take this opportunity to express my sincere thanks to Ministry of Ayush, Government of India to observe International Day of Yoga 2021. I would also like to thank our Director Dr. I.V. Basavareddy ji, Moraarji Desai National Institute of Yoga, for his contribution and guidance in this webinar series. Thank you so much, sir. On behalf of MTNIY and entire organizing team and my personal behalf, I would like to propose hearty vote of thanks to Arham Sri Muni 108 Pranayama Sagarji Maharaj. Thank you so much, Maharaj ji. I extend my gratitude and heartfelt thanks to Sri Chinmaya Kiyawat ji, founder and chairman, Om Arham Dhyan Yoga Foundation, for today's enlightening lecture. Thank you, sir, for your very interesting and thought-provoking motivational address. I am sure that all viewers have taken note of your awareness and motivation. This will boost us on march ahead with a fit and healthy population. We have to join hands for achieving health for all. Special thanks to the entire media persons, technical staffs who are directly and indirectly involved in this event. Last but not least, I am thankful to all our viewers for watching this event from India and abroad. Thank you. Namaste.